Next one, why the OBC tag for Marathas is far more from a lasting solution. We have seen from last 5 to 6 years that there has been increase in demand for the reservation among several community. For example, Kurmi in Jharkhand, then Patel, that is Patidar in Gujarat, Marathas in Maharashtra, and Jat in Haryana. So for that, Bihar is implementing a caste survey to formulate the policy basis on Ati Pichhada and Pichhada, EBC and OBC. Similarly, with respect to Andhra Pradesh. To further, Maharashtra government accepted demand of the Marathas to include them into the other OBC category. But why OBC are opposing the move? They are saying that Marathas are affluent section of society. They are well represented in the upper echelon of the Supreme Court, High Court, and even in the government services. So there is no need for reservation. Further, they have said that Indra Sawhney case have mandated 50% ceiling in reservation. Although it had been breached by several states, for example, Tamil Nadu, लेकिन that is rare of the rare circumstances. So other than Maratha, Kunbis are classified OBC. So currently 27% reservation है. Maratha agitation का origin. It comprises of 33% of state population. There are several groups, right from peasant, landowner to most influential and politically significant community in Maharashtra. हर जगह well represented. Further, in Maharashtra state government, reservation for the SCBC Act guaranteed 16% reservation in government jobs and education. But Bombay High Court said that okay, SCBC is correct, but 16% quota is not justified. It reduced the quota to 12% and 13% government job. Then Supreme Court in 2021 struck down the SCBC Act in 2018. तो ये एक ओवरऑल इशू है, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं हर एक जगह पर. दिस ऑल्सो शोकेसेस द इशू ऑफ द लैक ऑफ जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटी इन द कंट्री. उसको कैसे बढ़ाना चाहिए, तभी जाके ये रिजर्वेशन कॉन्सेप्ट नहीं आ पाएगा. सिर्फ स्पेसिफिकली रिजर्वेशन इज नॉट रिलेटेड टू द कास्ट. मेनी ऑफ द स्टेट्स आर डिमांडिंग द रिजर्वेशन फॉर द लोकल्स इन द जॉब्स, जैसे हरियाणा में, आंध्र प्रदेश में, इवन झारखंड की 75% below 30,000, 25,000 rupees, there should be a reservation for the jobs of the locals. Regarding Pakistan and Iran, अभी हाल फिलहाल में Iran has struck deep inside Pakistan. It had said that it had struck the Jana Udalla, a Sunni group that had links with the Al-Qaeda and fighting for the Sunni rights rather than ethnic Baloch right. Whereas Pakistan had said that Iran had violated its sovereignty and integrity. So there is a issue between between Pakistan and Iran. So we can see कि कैसे relationship between the two countries have changed over the years. First of all, regarding to Balochistan, there is both Balochi people live inside Balochistan also and they live inside Iran. तो अगर मैप देखोगे तो there is a वेल डिफाइंड बाउंड्री, बट उनका जो बाउंड्री है वो ईरान के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर में. दूसरा, बालूचिस्तान इज अ वेरी रिच प्रोविंस. इट हैज रिच gas reserve, natural gas, lithium ores, and rare earth material. That is why China is investing in CPEC project and connecting the project to Gwadar port in Balochistan, whereas India is investing in Charbagh port. So there is a strategic competition between two ports in that region. तो दो हो गए. तीसरा कि although the Iran's Pakistan border is well defined, it is well mapped, unlike Pakistan and Afghanistan on the basis of Durand line.
But the insurgent group, Baluchistan Liberation Army, Baluchistan Liberation Front, they carry out insurgency both inside Iran and as well as in Pakistan against the state. They are talking about the greater rights of the Baloch people, and they have the agenda to establish independent Balochistan. And thirdly, over the years, Iran was much closer to USA, and Pakistan was also closer to USA during the 1960s. That is why they have signed CENTO, Central Asian Middle East Treaty Organization, something like that. They have signed. But after the Shia Revolution 1979, the anti-USA sentiment was on rise, and further that Pakistan became a camp to the USA for the anti-Soviet jihadism, anti-Soviet mujahideen in Afghanistan in the 1970s 80s. तो दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया. Second, there is sectarian classes because Iran talks about the Shiite revolution, Shiite domination, whereas Pakistan is a Sunni majority country and Pakistan is a nuclear country, whereas Iran is talking about making us its own country nuclear. तो दोनों के बीच में ये इशू रहता है. देन thirdly, larger geopolitical context में Iran is closer to India rather than Pakistan. India supports north-south corridor, Charbahar port, and it also creates a multipolar world for supporting both Iran and as well as the western country. तो ईरान के लिए इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर पाकिस्तान देखा जाए तो इट इज वेल अंडर द कैंप ऑफ चाइना राइट नाउ. दूसरा, देयर इज अ issue in the Muslim world also with regard to the Iran versus Saudi Arabia UAE clash over the hegemony in the region. इराक, सीरिया, येमेन सब में वॉर क्राइसिस है, तो एक दोनों कंट्री के बीच में इशू है. तो ये हो गया. श्रीलंका आउट ऑफ द एबिस. We have seen that 2022 में Rajpaksa government was removed by the insurrection inside the presidential palace. उसके बाद विक्रम सिंघे गवर्नमेंट फॉर्म हुआ. And what Sri Lanka is doing to reverse the economic crisis? First of all, market stabilization policy, privatization of the state-owned enterprises, law and order improvement, increasing the tax so that the inflation can be reduced, controlling the inflation and removing the fuel subsidy. दूसरे फिर लॉ लाया गया जिसमें देयर इज अ मैंडेट फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ सेंट्रल बैंक, जो पहले नहीं था. उसके बाद दे आर नेगोशिएटिंग विद द आइडियाज ऑफ द पेरिस नहीं लंडन क्लब and India with regarding to the foreign loans that they have been foreign aid that they have been provided, $6.5 billion something. तो ये इतने सारे काम कर रहे हैं. दूसरा इम्पोर्टेंट जो एक और था कि इंडिया इज सपोर्टिंग जापानीज इन्वेस्टमेंट एंड ऑल्सो इंडियाज प्राइवेट सेक्टर. फॉर एग्जाम्पल अडानी ग्रुप is talking about joint cooperation in the Ceylon Petroleum Corporation for the developing of the port in Sri Lanka. It will cater to the aspiration of the Sri Lankan people, and it will also be a competition to the Hambantota port developed by China. तो ओवरऑल ये भी इश्यू है श्रीलंका में. या ये नाम है वेस्ट कंटेनर टर्मिनल एट कोलंबो पोर्ट. Adani's group and Sri Lanka John Keel Holding seeks to develop 700 million West Container Terminal at Colombo Port. It will counter the Hambantota Port in that region. Then
जब क्वेश्चन उठता है कि फ्रीबी कल्चर क्या है, तो उसमें एक इंट्रोडक्शन ऑफ द गृह लक्ष्मी स्कीम बाय द कर्नाटक गवर्नमेंट, उसमें फिर से बात हुआ है कि देर इज अ डायरेक्ट मंथली कैश ट्रांसफर ऑफ 2,000 रुपीज टू women who are the head of the below poverty line household in Karnataka. It will cost 32,000 crore। मंथली आप 2,000 रुपया दे रहे हो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है। क्यों ऐसा किया जा रहा है? तो बोला जाता है कि डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट, जैसे अनपेड वर्क जो काम करती है, डोमेस्टिक चोर्स लाइक कुकिंग, वॉशिंग, केयरिंग ऑफ द एल्डरली एंड चिल्ड्रन, इसको काउंट नहीं किया जाता है जीडीपी में, ना कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में। तो उनका रिपे बहुत जरूरी है। इसलिए प्रोज में अगर बोलते हैं, ये एग्जाम्पल है कि फ्रीबी कल्चर इसको बोल नहीं सकते, क्योंकि उससे मदद मिलेगा विमेन को। इट ऑल्सो signifies that redistribution of resources by the government to marginal section of society, recognizing the unpaid work cannot be termed as freebie। लिखा हुआ कि this cash support will not help women to decontrol the labor power from the system to an extent, but it will provide some cushion so that their bargaining power will increase inside the home as well as in the society. They further, from getting trapped in the cycle of poverty, they can come out of it। तो इसमें लास्ट में यही बोला गया कि ओवरऑल देर इज नीड टू यूनिवर्सलाइज सच सपोर्ट टू द वुमेन एंड दे कैन नॉट बी टर्म एज फ्रीबी कल्चर, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द अनपेड एंड केयर वर्क। तो केयर इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वुमेन का, तो वहां पर न्यूट्रिशनल अंडर न्यूट्रिशन को कैसे टैकल करें, इट स्टार्ट्स राइट इनसाइड होम। इसलिए ये एग्जाम्पल है। तो लक्ष्मी स्कीम, गृह लक्ष्मी स्कीम वह कर्नाटका, 2,000 रुपीज पर मंथ फॉर ईच वुमेन। इवोल्यूशन ऑफ सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स, इसमें क्या है? इट टॉक्स अबाउट द फार्मर्स राइट, इट टॉक्स अबाउट द एमएसपी, डिमांड फॉर द लीगलिटी ऑफ द एमएसपी। सेकेंड वुड बी with regarding to the reservation, subcategorization inside the OBC and as well as in the SC. Third would be more freebies and direct benefit transfer for the women, marginal section of society. More reservation in jobs, तो सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स। कभी अगर इंडिया में पूछा जाए, सबको ही सोशलिस्ट है, राइट फ्रॉम सेवरल पार्टीज। Supreme Court had asserted that 2016 ban on the sale of the liquors within the 500 meter of the outer edge of the national highway will not extend to municipalities। हाँ, 2016 में it was banned 500 मीटर around a national highway to reduce drink and drive cases। It will not extend to municipal area। तो स्पेसिफिक एरिया है, एग्जाम्पल है। वी आर टेकन अप दिस वन। पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन वर्कफोर्स, बस एक डेटा याद रखना कि 23% पहले था, तो अभी 37% है। तो देर इज इंक्रीज इन द वुमेन पार्टिसिपेशन इन वर्कफोर्स। फर्दर सेकेंड क्वेश्चन इसमें है कि देर हैज बिन कैजुअलाइजेशन ऑफ द वर्क फोर्सेस, जैसे कल पीटी में पढ़े थे वैसी। क्यों? क्योंकि दे आर मोस्टली एम्प्लॉयड इन द एरियाज सच एज, अगर बोला जाए तो कंस्ट्रक्शन लेबर्स, आउट ऑफ माइग्रेशन होता है तो दे आर हाउस होल्ड वर्क करते हैं या फिर मेड का काम करते हैं। मोस्ट ऑफ द वुमेन दे माइग्रेट। और ये क्वेश्चन था माइग्रेशन मोस्ट ऑफ वुमेन क्यों होता है, तो 80% इट इज रिलेटेड टू द मैरिज, 10% फैमिली, 2% इट इज रिलेटेड टू द education, and 0.5% it is related to the jobs। तो एक डेटा भी इंटरनल माइग्रेशन ऑफ द वुमेन।
इंडिया रैंक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, उसमें 93 आउट ऑफ 100 मिल, ये ले चुके। ब्लड मैपिंग ऑफ इंटरनल फीमेल माइग्रेशन यहाँ दिया हुआ है। 81% मैरिज माइग्रेशन ऑफ फैमिली मेंबर, 10% एम्प्लॉयमेंट 2.5, 0.5 एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट 2.5। तो मोस्टली दे आर इन द कैजुअल सेक्टर, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, डोमेस्टिक हेल्थ, तभी इसको बोलते हैं कैजुएशन ऑफ द वर्कफोर्स। अंडर रिपोर्टिंग होता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ द माइग्रेंट वुमेन। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि माइग्रेंट वुमेन आर नॉट पार्ट ऑफ द वोट बैंक पॉलिटिक्स, दैट इज वाई। तो कैसे इसको प्रमोट कर सकते हैं? तो ओवरऑल देयर शुड बी क्रेश फैसिलिटी, देयर शुड बी मोर एंड मोर सेफ स्पेस फॉर द माइग्रेंट वुमेन। ई श्रम पोर्टल होना चाहिए, वन नेशन वन राशन कार्ड, सम ऑफ द पॉलिसीज which is catering to the another, that is affordable renting houses complex. Some of the schemes are directed towards the male migrant population mainly, but women migrant population also should be included into it. तो एक और इशू है कि फीमेल स्पेसिफिक डेटा मिसिंग, तभी जाकर के पॉलिसी मेकिंग में दिक्कत होता है। High Court have questioned that V. Senthil Balaji continued to remain a minister without portfolio despite having been imprisoned over 230 days in money laundering case booked by ED. लिखा है कि even the employee of the state is deemed to have been suspended from the service if she or he remains over 48 hours in a criminal case. लेकिन ऐसा नहीं हुआ। This showcases the जो laxity in following the policy by the political executive, और इसको रिड्यूस करने के लिए देयर शुड बी स्टेप टेकन रिगार्डिंग दैट, कि आप रूल्स फॉलो करें, ड्यू प्रोसेस फॉलो करें और सस्पेंड कर दे। 146 में एमपी had been suspended, Lok Sabha and Rajya Sabha, for bringing play card in chamber, disrupting the parliamentary proceeding. All these cases were referred to the privilege committee, दोनों में होते हैं privilege committee, और they will return in the last session of 17 Lok Sabha committee. US India ties make the democratic world order stronger. Both country talk about free, open, rule-based international order. लेकिन दोनों के लिए रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर इज डिफरेंट। नॉर्मेटिव पावर यूएस लेड वेस्टर्न कंट्रीज, इंडिया टॉक्स अबाउट इंक्लूजन ऑफ मोर एंड मोर कंट्रीज इनटू द रूल मेकिंग प्रोसेसेस, जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन है। इसलिए रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर शुड बी यूनिफॉर्म, शुड बी इक्विटी बेस्ड। In several areas where India and US is collaborating, skilling forces, H1B visa to the skilled forces, domestic market huge है। फिर FTA साइन अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन दे आर नेगोशिएटिंग। डिफेंस में सबसे ज़्यादा बेका, लीमोए, स्ट्रैटेजिक ऑपरेशन इन द इंडो पैसिफिक रीजन, क्वाड में 2+2 डायलॉग, सिविल न्यूक्लियर डील, बाइंग ऑफ द several weapons from US, example Chinook, Apache, P8, Poseidon 8-1, etc. The long term में India US relationship is stable, it is progressing.
लेकिन स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी दो कंट्री के साथ है सिर्फ, फ्रांस एंड रशिया। विथ रिगार्डिंग टू द disinformation and hate campaign against the Rohingya refugees, HC High Court has observed that it has given direction to the Facebook to act against the hate campaign. A Facebook grievances official as per the IT rules 2020. सब चीज आपके पास है, there is enough infrastructure, but you have to act first, follow the mechanism. तो अभी इसके डील करने के लिए दो अभी इंपॉर्टेंट मेरे दिमाग में आता है, ट्विटर में से कम्युनिटी नोट्स है जिसमें करेक्ट किया जाता है हर एक फेक इंफॉर्मेशन को, एंड सेकेंड इज कि आपके पास ग्रीवांस ऑफिशियल है दैट विल टॉक अबाउट द सस्पेंशन एंड बैनिंग ऑफ द यूजर दैट आर स्प्रेडिंग द फेक न्यूज, एंड थर्ड इज स्पेसिफिक फैक्ट चेकिंग यूनिट कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू द सोशल मीडिया कंपनीज. Regarding the South China Sea and the issue of the several island between the countries over the economic exclusive economic zone, Philippines and Vietnam have signed a deal for the strategic cooperation between their militaries to tackle Chinese influence in that region. They have agreed to boost trade and investment because there was a territorial face-off between the Chinese and Philippines last week. स्पेसिफिक डिटेल्स बताया नहीं एग्रीमेंट के, लेकिन ओवरऑल देयर इज अ कोऑर्डिनेशन ऑन द मैरिटाइम इशू बिटवीन द टू कंट्रीज. कर्म. NHAI, it will raise 15,000 crore this fiscal year for the construction of the several highways, right from using the PAPP model, जैसे टोल ऑपरेट ट्रांसफर, कल एच हम लोग पढ़े थे HAM हाइब्रिड एनुअलिटी मॉडल, BOT बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर. तो हाइब्रिड एनुअलिटी मॉडल में देर इज ऑल्सो इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट, और बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर में आप खुद से बनाते हो और उसके बाद फिर आप टोल क्रेडिट करके वापस फिर दे देते हो. मानसी. हाँ राइट, इसमें इंडिया में अगर हम बात करते हैं ज्यादा परसेंटेज ऑफ प्रोजेक्ट्स जो अभी हाइब्रिड एनुटी मॉडल के अंडर है, सो वी आर ट्राइंग कि बीओटी मॉडल के अंदर वो शिफ्ट हो जाए. ठीक है. उसके बाद बोला जाए तो 15,900 crores have been raised to monetization of the highway stretches. तो फॉर द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ द हाईवेज, भारतमाला या फिर सागरमाला का बात करते हैं, तो उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि फंडिंग कहाँ से आएगी. तो पहली बात है कि फंडिंग यहीं से आएगी, इट हैज टू बी रेज फ्रॉम द पब्लिक. तो एक सो ये बॉन्ड जो भी है, रेट, इनविट. हाँ, हाँ इनविट. इनविट के थ्रू होगा. हाँ हम्म. इनविट के थ्रू हो लाइक जाए इन्वेस्टमेंट भी हो इंफ्रास्ट्रक्चर. जाएगी एंड गवर्नमेंट के लिए द इनविट फंडिंग वुड आल्सो बी देयर. यहाँ पे इनविट. इसमें बोल सकते हैं कि इंडिया में जो 80% जो ट्रेड होता है दैट इज थ्रू द रोडवेज, तो इसलिए द डेवलपमेंट ऑफ हाईवेज बिकम्स इम्पोर्टेंट लॉजिस्टिकल कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए. हम्म. दूसरा कि फर्स्ट ऑफ ऑल 10,200 करोड़ हैड बीन रेज बाय मोनेटाइजेशन बाय द इनविट सो फार, अभी तक में, और अभी बाकी जो भी किया जा रहा है. थर्ड राउंड ऑफ द इनविट वाज शेड्यूल्ड फॉर द ड्यू टू टैक्सेशन, इट वाज शिफ्टेड. तो अभी फिर से एक्सपैंड किया जा रहा है, हर एक के लिए इनविट यूज किया जा रहा है, इतने सारे. तो ओवरऑल इंपॉर्टेंट कीवर्ड है टोल ऑपरेट ट्रांसफर, HAM, BOT, इनविट. लिखा हुआ है कि लेटेस्ट मूव बाय इनविट रूट विल टेक प्रोसीडिंग फ्रॉम द हाईवे मोनेटाइजेशन टू फिस्कल 40,000 करोड़. तो वाई गोल्ड इज, गोल्ड इंपोर्ट इज इंक्रीजिंग.
ऐसा होता है कि where there is a certainty in the global scenario and also in the market, trust factor decreases on the market or banks, then there is a import in the gold, because it acts like a cushion to the family. It is highly liquid. That is why. तो प्राइस गो अप, फिर आप खरीदते हो गोल्ड, अप्रोक्सीमेटली अभी 60 to 70 thousand के बीच में गोल्ड की प्राइस। और गोल्ड रिजर्व्स की अगर हम बात करते हैं विद द आरबीआई, मतलब गोल्ड एसेट्स जो हैं 800 टन्स ऑफ गोल्ड इज देयर, टारगेट इज टू रीच 1000 टन्स। हम्म। तो गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का बात होता है, दूसरा होता है गोल्ड ईटीएफ। तो बॉन्ड अभी एक्सचेंज उतना, हाँ एक्सचेंज ट्रेडेड, तो आप इसको खरीद करके वापस से मार्केट में बेच सकते हो, एक्सटेंडेड ट्रेडेड फंड ईटीएफ में। और जो गोल्ड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, वहां पर आप खरीदते हो, खरीदते नहीं हो आप, डिस्काउंटेड प्राइस में लेते हो और फिर वापस मैच्योरिटी पीरियड में आप फिर बेच देते हो। हाँ जी, गोल्ड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है कि इट इज नॉट हेज्ड बाय द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन होता है लेकिन उसमें बहुत कम रिटर्न है, इसलिए लोग नहीं परचेज करते और चाहते हैं कि फिजिकली इसको रखें घर पे। ये सक्सेसफुल हो नहीं प्लस पाया उसमें सॉवरेन गोल्ड। एक डिफाइंड हाँ टेन्योर भी होता है, तो आपको उतने टाइम के लिए होल्ड करना पड़ता है। हम्म। ईटीएफ्स में आप ट्रेड भी कर सकते हो तो गोल्ड, हाँ, तो दैट इस इज मोर रिलायबल। जैसे म्यूचुअल फंड से हमेशा कंपेयर करते हैं, तो आप उसको ट्रेड नहीं कर हाँ सकते, ईटीएफ कर सकते हो। सेम चीज, वी आर टेकन अप दिस वन। इंपॉर्टेंट पर निकालना है, नॉर्वेज ईवी पॉलिसी। ईवी पॉलिसी जब भी आता है तो नॉर्वे ईवी पॉलिसी, और 3 4 एरियाज है, हर जगह उन्होंने इंसेंटिव दिया है। चाहे आपको जीरो टोल टैक्स, पार्किंग जीरो, बस लेन में आपको चला सकते हो रोड। दूसरा कि चार्जिंग नेटवर्क में इंसेंटिव दिया गया है, सब में इंसेंटिव दिया गया है। तो वैसे इंडिया में सोर्स ऑफ हो सकता है लॉन्ग इलेक्ट्रिसिटी भी टर्म। 99% सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, तो इलेक्ट्रिक है इंडिया वो में, भी। मोस्टली कोल से। 4 years ऑफ सर्वे, तो इसमें सर्वे कौन, 718। तो पूछा जाएगा पीटी में सबसे ज्यादा कहाँ पर है, कौन से स्टेट के अंदर, लद्दाख। लद्दाखी क्यों है, स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड। हर लेपर्ड जो होंगे वो वर्नेबल, वर्नेबल होंगे आईयूसीएन के अंदर में। तो यहाँ लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ऐसे याद कर सकते हैं। देन कैसे किया गया, तो फर्स्ट हुआ डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिटिक्स, एंड सेकंड इज यूज ऑफ बॉडी मार्कर एंड सेटिंग अप ऑफ कैमरा ट्रैप्स, डिफरेंट टाइप्स। एंड यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि कौन सी स्पीशीज है इंडिया में, तो इंडियन लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड है, क्लाउडेड, एंड देन ब्लैक पैंथर। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चारों ही वल्नरेबल स्टेटस है इन चारों का। और स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट, ये असेसमेंट किया गया बाय द WWI, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सपोर्टेड बाय WWF एंड नेचर कंजर्वेशन। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ओके। फर्दर, नॉमिनेशन ऑफ द 12 फोर्ट्स और मराठास फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज अभी इंक्लूड नहीं हुआ है, लेकिन इंडिया हैव नॉमिनेटेड फॉर 2024 2025। स्ट्रैटेजिक मिलिट्री पावर मराठास 17 18 सेंचुरी के बीच में, 19 सेंचुरी के बीच में। तो डिफरेंट सह्याद्री हिल्स, माउंटेन, कोंकण, डेक्कन प्लेटो, ईस्टर्न घाट, सब जगह जो फोर्ट्स है, तो वो उनको प्रमोट करने के लिए। सलहेर, शिवनेरी, खंडेरी, प्रतापगढ़, राजगढ़ सेक्टर। एंड प्रोमिनेंट अगर लीडर्स की बात अगर करते हैं मराठास में, तो आप किसका नाम लेंगे कि ग्रेटेस्ट अगर लीडर बोले मराठास में तो कौन थे? छत्रपति छत्रपति शिवाजी शिवाजी महाराज। ग्रेटेस्ट, उसके बाद बालाजी बाजीराव टू, 17 20 40 40 60, 60 के बाद फिर तो छोटे हुए, विश्वनाथ राव, बालाजी राव और बाजीराव टू। एंड वी हैव तो सीन की इंडियन नेवी में जो इंसिग्निया है दैट इज आल्सो जो हाँ, आइडियाज हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के। सील ऑफ द छत्रपति शिवाजी। 8 new entrants इन द ग्लोबल 500। तो न्यू एंट्रेंस ऑलरेडी 500 में, आई थिंक 21, 14 था पहले। टॉप 500 वर्ल्ड ग्लोबल 500 में, अब 21 हो चुके हैं। एल न्यू, HCL टेक, टाइटन, टाइटन $41 billion, सन फार्मा, एक्सेस रिलायंस सबसे ज्यादा है। 235, रिलायंस TCS 167। हम्म। $236 बिलियन मार्केट हम्म। कैपिटलाइजेशन।
के। कीवर्ड बाकी सब में कंपनी से इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कीवर्ड इंपॉर्टेंट है ओवरऑल। वाटर पॉजिटिविटी, कहीं पर वाटर वेस्टेज होता है कैसे कम करें, उसे प्रमोट करें, वाटर हार्वेस्टिंग कल्चर, सर्कुलर इकोनॉमी, रीयूज रिसाइकिल, फिर रिकलेक्ट रीयूज रिसाइकिल, क्लाइमेट चेंज कैसे डील कर सकते हैं, देन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस, उसके लिए ESG एंड सस्टेनेबिलिटी। सोशल के लिए आपको इक्विटी प्रमोट करना चाहिए वर्नेबल सोसाइटी के लिए, और एनवायरमेंटल लॉस करना चाहिए, तो ESG नॉर्म्स हो गया। एंड ऑल्सो इनके पास स्पेसिफिकली एक टास्क फोर्स है ऑन क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंस डिस्क्लोजर्स एंड देन वेस्ट हीट हम्म, रिकवरी सिस्टम्स। एंड इसमें ये भी है कि जो सीमेंट कंपनी ये है, तो ये लो क्लिंकर कंटेंट प्रोडक्ट्स यूज करते हैं जिनसे जो कार्बन फुटप्रिंट है इनका डिक्रीज होता है, जैसे फ्लाई ऐश, स्लैग, लाइमस्टोन। तो ये भी हम एक्टिव एग्जांपल देख सकते हैं। हम्म। और फिर इंपॉर्टेंट UNSDG के अंदर में क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म वॉलेंट्री कार्बन स्टैंडर्ड प्रमोट करते हैं। वो वेपर कैसे वाटर बनते हैं, तो वेपर्स जो होते हैं इट फॉर्म्स इट कंडेंसेस अराउंड द न्यूक्लाई, स्मॉल न्यूक्लियर सॉलिड पार्टिकल होते हैं, उसके बाद फिर कंडेंसेशन होता है, और सॉल्ट कलेक्टिंग वेपर अराउंड 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, उसके बाद जब 100 होता है तब फिर बारिश हो जाता है, 300 ड्रॉपलेट इट फॉर्म्स स्मॉल रेन ड्रॉप, और फिर जब ड्रॉपलेट वापस से इवेपोरेट होते हैं तो आइस क्रिस्टल फॉर्म होते हैं क्लाउड में। तो अच्छा दिए होते। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप डीप स्पेस को ऑब्जर्व करने के लिए, इंफ्रारेड कैमरा, नियर बाय गैलेक्सी थैंक्स। IMF इज बुलिश ऑन इंडियाज GDP ग्रोथ 6.7%, सबको 6.7 to 7.3 के बीच में, तो एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। यूनियन गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन टैकलिंग ऑफ ऑन फिजिकल कंसोलिडेशन, मेंटेनिंग कैपेक्स एंड वेलफेयर स्पेंडिंग। पिछले साल वेलफेयर स्पेंडिंग कैपेक्स वेलफेयर स्पेंडिंग कम किया गया था, डिफरेंट स्कीम 3F, फूड, फर्टिलाइजर एंड फ्यूल में, एंड देयर वाज इंक्रीज इन कैपेक्स इन रेलवेज, हाईवेज, पोर्ट, सिविल एविएशन एक्सेट्रा। तो ये सेम इसमें भी किया जाएगा, वेलफेयर स्कीम को रखा रह जाएगा, लेकिन अब कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जाएगा फॉर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। टारगेटेड फिजिकल डेफिसिट 4.5% है अभी, और करेंटली अभी 5.9% तो डिक्रीज किया जाएगा ओवर द 1 ईयर। तो फिस्कल कंसोलिडेशन के लिए हम ऐसा क्यों नहीं करते कि जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है हम उसको थोड़ा डिक्रीज कर दें, बट कैसे हम करोगे, हम आपको सब्सिडीज दे दें। इक्विटी प्रमोट करना है, इक्विटी प्रमोट करना है हर सेक्शन सोसाइटी के अंदर में, तो नहीं हो सकता। ओवरऑल आप बस ये कर सकते हो कि कैपिटल कैपेक्स को बढ़ा सकते हो, क्योंकि सब्सिडी देते हो तो टारगेटेड होता है तभी वो बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर जाते हैं, ऊपर जैसे ही जाते हैं तो कमाना स्टार्ट करते हैं, कमाते हैं तो फिर टैक्स कलेक्शन बढ़ता है, तो साइकिल मानसिक, हाँ, तभी जाकर के राइट। वो देते रहते हैं। इसलिए विमेन स्किल्स पे वेलफेयर ज्यादा MSP फोकस कर रहे फोकस हैं, है। हाँ, ट्रेनिंग स्किल्स। हाँ, ठीक। एंड बट यहाँ पे एकदम बात से आप करें माइक्रो कम नहीं कर स्टेबिलिटी सकते। को मेंटेन करने की, तो मैक्रो स्टेबिलिटी को मेंटेन कैसे करते हैं? जो मैक्रो इंडिकेटर, स्टेबिलिटी। अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इन्फ्लेशन रेट हो गया, या बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट का हो गया, करंट अकाउंट डेफिसिट जो एक कंपोनेंट है, तो इन सब में अगर स्टेबिलिटी होगी, नियर द टारगेट लेवल्स होंगे, तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहेगी, इनफ एम्प्लॉयमेंट अगर क्रिएट की जाएगी, देयर वुड बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज, एंड वो वेलफेयर मेजर्स अगर लिए जाएंगे फॉर द पुअर एंड द बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है। NTPC प्लान्स 80,000 करोड़ ग्रीन प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र। ग्रीन प्रोजेक्ट NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इट इज अ पार्ट ऑफ द इंडिया पंचप्रधान मिशन, और कैसे ग्रीन ट्रांजिशन हो ओवरऑल 80,000 करोड़ सोलर स्टेट बॉडी। सोलर सेक्टर, विंड एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज में भी इट वुड बी इन्वेस्टिंग। तो और एनटीपीसी, ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन, मिशन में। एंड NGES। ग्रीन। ठीक।
Don't see any stress building an unsecured credit book. Gross national ratio moderate to 3.12%, below 3. एनपीए, तो एनपीए पहले आई थिंक 9% था, धीरे धीरे अभी 3.12 हो चुका है मानसी। जीएनपी है, नॉट, अगर हम एनपीए नहीं बोल सकते, मतलब ग्रॉस है, जीएनपी उसके लिए मतलब फिर नेट ग्रॉस देखना सबके लिए बात। पड़ेगा। ठीक। To protect the Amazon, conservator try to save pollinator. Stingless bees are native to Amazon, or they're familiar, but invasive honey bees have spread throughout the America. The invasive honey bees, the honey is running enough to be drunk like liquid. और तो उसके लिए कंजर्वेटर आर ट्राइंग टू सेव द पॉलिनेटर, द हनी बीज, जो नेटिव हनी बीज है, पेरुवियन हनी बीज, उनको। क्यों? क्योंकि डिफॉरेस्टेशन का उनका लैंडस्केप चेंज हो रहा है। इट इज बीइंग मेड इनटू फार्म्स, रैंचेस, डिसअपीयरेंस, पेस्टिसाइड्स यूज, क्लाइमेट चेंज, कंपटीशन विद अदर हनी बी। तो बी कीपिंग को प्रमोट किया जा रहा है बाय द कंजर्वेटर। एंड दिस अमेजन फंड, इट इज बीइंग यूज्ड टू कंजर्व दिस स्पीसीज। बोला जाता है कि गवर्नमेंट बैकिंग जरूरी है, तभी जाके लोकल नॉलेज के साथ ही आप काम कर सकते हो फिर। Making plane in India. India is talking about the increased participation Airbus और C295 टाटा ग्रुप और एयरबस के साथ डील हुआ है 52 एयरप्लेन बनाने के लिए, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट। बोइंग और एयरबस और भी दे रहे हैं प्लेन्स इन नेक्स्ट 10 years, चाहे वो एयर इंडिया रहे, चाहे वो फिर अक्षय एयर में। लॉन्ग टर्म में जो इंडिया का प्लान है, इंडिया में कैसे बनाए, उसमें फोकस करना चाहिए। सिविलियन एयरप्लेन अपार्ट फ्रॉम जो इंजन, जेट इंजन। चाइनीज इमेजिनेशन डेफिसिट। चाइनीज में क्वेश्चन पूछा है कि वहाँ लीडरशिप इज सफरिंग फ्रॉम द इंक्रीजिंग वरिशम इमेजिनेशन डेफिसिट। वहाँ पर एवरग्रांडे क्राइसिस हुआ इन द रियल स्टेट सेक्टर, राइट फ्रॉम पॉपुलेशन इशू, हर जगह प्रोडक्टिविटी इज डिक्रीजिंग इन द एमएसएमई सेक्टर। तो इंडिया को कदम उठाना चाहिए, चाइना प्लस वन पॉलिसी और बाकी सब। यहाँ पे लिखा है काउंटर साइक्लिक दैट्स माइंडसेट। यस। उसका